All right. Next one is the open tube manometer. Next instrument is open tube manometer. This instrument is for measuring the pressure difference of any system, like this is the cylinder in which gas is filled. So how much is the pressure difference with the atmosphere, or to measure the absolute pressure also, है ना? To measure the, or to measure absolute pressure also. जैसे ये सिलेंडर है, इसमें गैस फील्ड है, तो इसका प्रेशर डिफरेंस किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ, है ना? और वी कैन फाइंड आउट द टोटल प्रेशर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना? लेट मी मेक द स्पेस एंड राइट जस्ट अ मिनट. Pressure difference with atmosphere. Let me write it properly. Pressure difference with atmosphere or to measure absolute pressure. So let's see how does it do. So same logic is same here, same at same level in same liquid at rest will be pressure will be same, है ना? सेम लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा. यहाँ पे दो पॉइंट हमने सेम लिक्विड में लिए, लिक्विड इज स्टैटिक, pressure will be same. So this is the point we are going to use for the next few topics also, and then fluid flow will start. तो देखो, suppose this is the system, कोई सिलेंडर है, उसमें गैस फील्ड है, आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया उसको यूट्यूब को, ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर इन द शेप ऑफ यूट्यूब, ठीक है? वन साइड आर्म इज बिगर, अदर साइड स्मॉल है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने, है ना? इसमें लिक्विड फील्ड था, है ना? दैट लिक्विड कौन सा होगा? इफ यू फील द प्रेशर डिफरेंस इज बिग, then you use the mercury. If the pressure difference is small, then you use the water or any other light liquid. So for large pressure difference, mercury is used. For a small pressure difference, light liquids are used. ठीक है? तो आपने कनेक्ट कर दिया इसको. जब कनेक्ट करने से पहले लेवल विल बी सेम इन बोथ द आर्म्स. ऐसे लेवल रहेगा ना, लेवल सेम रहेगा because both the arms are open to the atmosphere. But when you connect it here, so this gas, suppose this pressure of the gas is more, it will push the liquid down this side it will go up, so level difference will come, है ना? कितना लेवल डिफरेंस आ गया? इतना H का लेवल डिफरेंस. So that will help us to find out the pressure difference. Let's see how. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? सिस्टम समझ में आ गया? ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर है in the shape of U-tube. It is to be connected here. यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको, and there will be the pressure difference in both the side because of the high pressure in the gas here. तो pressure difference आप देख लो, मेजर कर दो यहाँ पर स्केल लगा के. Put the scale here and measure the level difference of liquid in the tube. तो pressure P of the system at A पर जितना प्रेशर है उतना B पर होगा. Both are at same level. A पर क्या है? A पर प्रेशर, इसका गैस का प्रेशर है P, A पर P, and at B there is the atmospheric pressure, P atmosphere plus H rho g. इसका कितना होगा? लिक्विड का H rho g. तो at B it will be rho gh and plus atmospheric pressure PA. So that is giving the total pressure of the gas. That's what I have written, absolute pressure of the gas or any other system. और प्रेशर डिफरेंस निकलना है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इधर लाइए, है ना? प्रेशर डिफरेंस विद द एटमॉस्फेयर आई हैव रिटन. तो दैट विल बी रो जी एच, दैट इज नथिंग बट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा. ठीक है?
Of course, density also matters. So it gives us the gauge pressure. If outside atmosphere is there, so this pressure difference is also called gauge pressure. So that's how it works. Open tube manometer, it can give you the absolute pressure also and gauge pressure also by noting this H. ये note कर लीजिए, density will be known to you, G also known to you. Multiply all three terms will give you the pressure difference. Clear? Yes, sir. So, Yeah. so can you please explain this again? Actually, I got disconnected. देखो, सिमिलर टू द बैरोमीटर, वहां पे भी हमने ये पॉइंट यूज किया था कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है. तो यहाँ पे आप ये मैनोमीटर कनेक्ट कर दीजिए. इट इज अप टू हियर, मैनोमीटर इज अप टू हियर, है ना. ये आपका गैस सिलेंडर कुछ है या समथिंग सिस्टम इज देयर, उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर. तो व्हाट यू फाइंड, दिस गैस विल पुश द लिक्विड दिस साइड एंड इधर से ऊपर आ जाएगा. तो नोट डाउन द लेवल, ये ए पॉइंट ए है, ये बी है, और ये यहाँ तक ये सेम लिक्विड है. तो ये एक्स्ट्रा हाइट देखिए, लेवल डिफरेंस नोट कर लीजिए. नाउ वी आर यूजिंग द पॉइंट प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम. पास्कल्स लॉ यूज करें. प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, बोथ आर एट सेम लेवल. तो ए पर क्या है, गैस है, ये इट अप टू पॉइंट ए, सपोज दिस इज द गैस फील्ड इन द सिस्टम, तो उसका प्रेशर हो जाएगा पी. और बी पर क्या प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस ये एक्स्ट्रा रो जी एच, लिक्विड का प्रेशर जो है, तो रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो दैट इज द प्रेशर, दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस. एंड if you want to find out the pressure difference, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इधर ले आओ, माइनस पी ए हो जाएगा, दैट विल बी रो जी एच. So it is giving you both absolute pressure also, gauge pressure also. This can be absolute pressure. नहीं, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमने पी सिंबल दिया है. So it is the pressure of the gas. P can be absolute pressure of the gas. Absolute pressure of gas in cylinder. ठीक है. Got it? So there is one numerical also based on these points. इस पॉइंट पर बेस एक न्यूमेरिकल है सॉल्व एक्सरसाइज में. we'll do that and then we'll see the subsequent topics. किसी को डाउट है इसमें? What one thing is used, पास्कल लॉ यूज हो रहा है इसमें, है ना. प्रेशर एट सेम लेवल इन द सेम लिक्विड एट रेस्ट विल बी इक्वल. पास्कल लॉ पढ़ा था कल हम लोगों ने. व्हाट वाज दैट? सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है स्टैटिक लिक्विड में एंड सेम लिक्विड में. Now you see this question. You note कर लीजिए. This can be your short questions based on the open tube manometer, what for it is used, and how it is used to measure the pressure difference. Manometer है ना. Barometer is for what? Barometer is for what? To measure the pressure of what? Atmosphere. And manometer, this is the manometer. It is for what? Pressure of the system, pressure difference, or pressure of the system. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. This question is, yeah, all right. This question is based on the same point. Let's see. Manometer reads the pressure of gas in the enclosure as shown in this figure. When the pump removes some of the gas, manometer reads as in the
shown in the second figure. The liquid used in the manometer is mercury and the atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. Now ये भी mercury है और atmospheric pressure भी 70 equal to 76 centimeter of mercury के बराबर है. तो answer will be in the terms of mercury only, height of the mercury, pressure जो आएगा इसके टर्म में लिखेंगे हम mercury के सेंटीमीटर के टर्म्स में. Let's see, give the absolute pressure and gas pressure of the gas in the enclosures for cases A, B, unit of centimeter of mercury. सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में आंसर देना है आपको, कन्वर्ट नहीं करना है. तो प्रेशर ऑफ द गैस है ना, पहले तो हमें एब्सोल्यूट दोनों का वो चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गैस प्रेशर दोनों चाहिए. लेट्स सी एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गैस प्रेशर. तो एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी rho GH plus atmospheric pressure. We are talking about diagram A. तो रो कितना है, मरकरी है, एंड ये कितना है इसका 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है. तो दिस विल बी 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg. यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट. एंड एटमॉस्फेयर कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. तो आंसर है 96 सेंटीमीटर ऑफ Hg. इट इज गिवन इन दिस फॉर्म बिकॉज दे आर आस्किंग सेंटीमीटर ऑफ मरकरी देना है आपको. तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज 96 सेंटीमीटर. ऑलराइट, और गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, P minus PA is equal to rho GH, that is 20 centimeter of mercury. All right, shall I write? एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं. First part is clear. Now second part, gauge pressure. P minus PA is equal to H rho G. This is equal to same 20 centimeter. So let's see the answer. 96 and gauge pressure is 20 centimeter of mercury. ठीक है, बी यहाँ पे बी होना चाहिए. नाउ बी का देखते हैं सेकंड डायग्राम का. दिस साइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे थिंग्स आर रिवर्स्ड. ये बी का देखते हैं. बी में देखो ध्यान से, सेम लॉजिक लगाएंगे. व्हाट इज हैपनिंग, what is happening, you are removing some pressure with the help of pump. यहाँ से आपने कुछ प्रेशर निकाल दिया, कुछ गैस निकाल दिया आपने with the help of pump. तो pressure will be decreasing. यहाँ पे जो pressure of gas will go down, it will become less than the atmospheric pressure. This side the atmosphere pressure is there, that will push the liquid this side, and this side now level difference comes because इधर प्रेशर कम हो गया, पंप लगा दिया इधर. बट लॉजिक यूज विल बी सेम नाउ. यहाँ पर ए प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. यहाँ पर भी देखो ए यहाँ पर लेंगे, विल टेक ए हियर एंड बी हियर. प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. ए पर क्या है, गैस का प्रेशर है इसका, दैट इज नथिंग बट पी ओनली, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर. नाउ यहाँ पर देखो गैस प्रेशर फिर से पी है. तो ए पर एक तो गैस का जो प्रेशर है दैट इज पी प्लस दिस साइड एच रो जी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. प्रेशर एट बी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए. गॉट इट और नॉट? ए पर देखो क्या है, गैस का प्रेशर है, गैस सिलेंडर है, उसका प्रेशर है, प्लस ये कॉलम इधर एक्स्ट्रा है तो उसका प्रेशर है रो जी एच. इस तरफ है ना लिक्विड. नाउ लिक्विड दिस साइड इज मोर, this side ये extra liquid is a level difference. This will also exert pressure at point A, that will be rho GH. It should be pressure at B. B per atmosphere is acting. Pressure of atmosphere will be there at B. Now absolute pressure is P is equal to P atmosphere minus rho GH. So absolute pressure is, नहीं पहले हमें क्या निकलना है, गेज प्रेशर निकलना है क्या.
let's see sequence. First one is find out the absolute pressure. ठीक है, absolute pressure. This is 76 और ये कितने डिफरेंस दिख रहा है 18, तो -18 कर दीजिए. तो absolute pressure कितना आ रहा है देखो, how much it is coming, 58. कितना आ रहा है ये 58. Answer is, yeah, 58 centimeter of mercury is the absolute pressure. बोलो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हमने सेम लॉजिक लगाया. एनीबॉडी हैज डिफिकल्टी है? यहाँ पर प्रेशर ये रहेगा प्लस ये इसका रहेगा, which will be equal to pressure at B, that is B per atmosphere is directly coming and acting, that is atmospheric pressure. The absolute pressure is difference of both. नहीं, absolute pressure is, यहाँ पे हो क्या रहा है, P is the absolute pressure. P दोनों में जो गैस का प्रेशर है, that is the absolute pressure, total pressure. P is the total pressure of gas, total pressure of gas, which is absolute pressure, which is called total absolute pressure. आप लोगों ने केमिस्ट्री में हीट एंड थर्मो गैस का चैप्टर पढ़ा है आपने, थर्मोडायनेमिक्स, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है? No, sir, not yet. No, sir. ओके, ठीक है. तो उसमें PV is equal to nRT होता है. P is the absolute pressure, total pressure of the gas. P is the total pressure of the gas called absolute pressure. यहाँ पर ये इस तरफ आ गया तो 58 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और डिफरेंस क्या है देखो, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है अपना 58, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 76, तो कितना आ रहा है देखो, से -18 आ जाएगा, है ना, -18 सेंटीमीटर. तो गेज प्रेशर माइनस में आ रहा है ना. तो लेट्स सी द आंसर, -18 आ रहा है. कैन यू सी हियर? ये दोनों एक ही पार्ट है. ये both the parts of both the part belong to the part A only. समझ में आया ये आपको ये पॉइंट्स? ये थोड़ा डिफरेंट वे है, डिफरेंट. इसमें क्या है, प्रेशर कम हो गया, पंप ने प्रेशर को, some gas it has removed out of the system, therefore pressure has gone below the atmospheric pressure. Sir, please could you explain this B part? B part में point use is same, pressure at A and B are at same level. Pressure at A is equal to pressure at B. A side में यहाँ पे गैस है, उसका प्रेशर प्लस लिक्विड इज एट सम हाइट हियर, उसका प्रेशर ρgh. B पर it is just atmosphere is coming and acting at point B. It is open to the atmosphere. तो B पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. नाउ ρgh को इधर शिफ्ट कर दिया, प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन 76 एंड यहाँ पे जो ρgh है, द लेवल डिफरेंस इज 18 centimeter of mercury that we have put. It is coming 58 centimeter of mercury and absolute, and
Gauge pressure is atmospheric pressure, and I mean absolute pressure minus atmospheric pressure. Absolute pressure कितना निकाला हम लोगों ने? 58. 58 यहाँ पुट कर दिया. Atmospheric pressure is 76 सेंटीमीटर. दोनों का डिफरेंस -18 आ गया. मतलब प्रेशर, गेज प्रेशर इज नेगेटिव. मतलब क्या है यहाँ पर कि प्रेशर It जो will है act in the सिस्टम में, opposite direction. हाँ, प्रेशर जो गैस का प्रेशर है, इट हैज गॉन डाउन बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Okay, yes, sir, I got it. Thank you, sir. ओके. और हमें वैल्यू नहीं पुट करनी है, इसको एज इट इज पुट. वंस वी आर पुटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76, तो इसको भी एज इट इज पुट करना है. 18 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. हियर डिफरेंस देखो 20 है, तो यहाँ पे रो जीएच की वैल्यू 20 पुट कर दी. बिकॉज दे आर आस्किंग राइट योर आंसर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यू हैव टू राइट. गॉट इट. तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको. दिस सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज रेगुलर क्वेश्चन, and this part B जो है, in place of doing B, you can do it later. Next question मैं करा रहा हूँ. It is similar to the next question, part B, similar to the next question, which we can do it, and then we can see. Minus 18 centimeter of Hg. Next two questions also are based on that point only. Pressure at same level will be same in the same liquid at test. तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन इजी है and important है ये. It is very easy also and important. Let's see. इसको पहले मैं हाइड कर देता हूँ. Let me hide it and let's understand the question. Diagram is not given. You have to make the diagram also. U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury. बीच में mercury Hg, इधर spirit है and इधर water है. The mercury column in the two arms are in level. दोनों level में है. In level with 10 centimeter of water. ये water का column 10 centimeter है. In one arm and 12.5 centimeter of spirit. ये 12.5 centimeter उसकी length है column की. In the other one, what is the specific gravity of the spirit? Specific gravity means relative density. RD निकालना है. तो इसकी relative density निकालनी है. तो यहाँ पे क्या बोला? mercury is at same level. तो pressure at A will be pressure at B. तो A पर क्या है? Atmospheric pressure plus H1 rho 1 G. और B पर क्या है? इधर भी atmospheric pressure है, H2 rho 2 G. तो ये atmospheric pressure has gone, G has gone. क्या बचेगा? H1 rho 1 equal to H2 rho 2. तो H1 आपको दिया है, दोनों का H1 दिया है 12.5. इसकी डेंसिटी निकालनी है. और इसका H2 is 10, rho 2 is वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? 1. तो सॉल्व कर लेंगे इसको. डेंसिटी लिखने हैं. सीजीएस में रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी बोथ आर इक्वल. तो सीजीएस में डील कर रहे हैं हम लोग. तो थिंग्स विल बी इजी डीलिंग इन द सीजीएस. तो देखो, प्रेशर एट ए एंड बी आर पार्ट ऑफ द मर्करी ओनली, which are at same level in both the arm, A and B. लेफ्ट साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 rho 1 G, राइट साइड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस. तो ये कैंसिल हो जाती है हमेशा G. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद H1 rho 1 इज इक्वल टू H2 rho 2. H1 इज 12.5 गिवन सेंटीमीटर में. तो डेंसिटी भी सेंटीमीटर सीजीएस में आ जाएगी. एंड वाटर का कितना 10 दिया है, उसकी वाटर की सीजीएस में डेंसिटी 1 होती है. इफ यू सॉल्व इट तो ये आपकी आ जाएगी 0.8. तो वही रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी. दैट्स ऑल. Therefore, relative density is 0.8 only. Therefore, relative density is equal to 0.8 of the spirit.
एक मिनट, स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज किया है, देयरफॉर जीरो पॉइंट एट, ठीक है, दैट्स द आंसर। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. So this can be important question in competitive examination also. तो एक ही पॉइंट यूज हो रहा है, पास्कल्स लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना? We are using the Pascal's law. Pressure at same level is same in the same liquid at rest. बोले किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. नोट कर लीजिए। ऐसे ही सेम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंशन ऑफ दिस ओनली। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन and try to do yourself. Yes, Anusha. Yes, are you there, Anusha? Yes, sir. Anusha, okay. Clear? Yes, sir. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में चेंजेस करने, व्हाट दे आर टेलिंग यू इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, if 15 centimeter of water and 15 centimeter of the split each are further poured, इधर भी 15 सेंटीमीटर डालना है आपको वाटर, इधर 50 सेंटीमीटर स्प्लिट डालना है into the respective arms of the tube. What is the difference of level of mercury in the two arms? मर्करी का स्पेसिफिक रेटिंग अभी क्या है, अगर आपने इधर 15 सेंटीमीटर ऐड किया, वाटर इज हैवी, तो ये इसको पुश कर देगा नीचे, तो लेवल डिफरेंस विल कम। नाउ मर्करी विल बी हैविंग सम लेवल डिफरेंस लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका लेवल डिफरेंस मर्करी का निकलना पड़ेगा, H3 हो जाएगा, वो उसको 3 लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? Because you are adding 15 centimeter of each respective liquids in their respective arms. तो water तो density more है, water की relative density is 1 and इसकी जो split की 0.8 है, तो water is heavy, so it will push the liquid down, mercury down this side mercury will come up. So there will be level difference in the mercury. तो कैसे करेंगे? इधर दो liquid हो जाएंगे, H1 और mercury को H3 ले लो, वाटर को H2 ही लो। तो H1 ये पहले कितना था आपका 12.5 था, 12.5 प्लस 15 27.5 लेना पड़ेगा स्प्लिट का। मरकरी का H3 में निकलना है, वाटर का पहले कितना था 10 था, बाद में आपको 15 मोर, तो 25 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मरकरी का लेवल डिफरेंस, ऐसा डायग्राम आएगा। देखो, शैल आई शो यू द डायग्राम, रफ डायग्राम, थोड़ा सा उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना है। कैन यू सी हियर लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा। देखो
तो ये आपका ये स्प्लिट है, इसका ये लेवल H1 जो है चेंज हो गया, 15 प्लस हो जाएगा। ये मरकरी इतना H2, ओके, इसको H2 ले रहे हैं और इस तरफ वाटर को H3 ले लेंगे। ये वाटर है इधर, तो A एंड B अगेन प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। ए पर दो लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ सकते हैं बिकॉज बोथ साइड इट इज एक्टिंग, इट इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोड़ दीजिए, यहाँ पर H1 रो 1 G प्लस H2 रो 2 G इज इक्वल टू H3 रो 3 G। तो G भी कैंसिल हो जाता है। H1 रो 1 विल बी फॉर द स्प्लिट, H2 रो 2 विल बी फॉर द मर्करी। H2 निकालना है हमें, मर्करी की डेंसिटी दी है CGS में, स्पेसिफिक डेंसिटी दी है, सेम विल बी द डेंसिटी। वाटर की 1, वाटर का भी है H3 इज चेंज, इट इज गिवन, एंड उसका डेंसिटी 1 ले लेंगे तो H2 आ जाएगा। ये मरकरी का लेवल डिफरेंस, ये दिस विल बी कैलकुलेटेड। कैन यू कंप्लीट दिस? आर यू देयर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. So can you try this question again? Pascal's law, इस तरफ दो लिक्विड हो गए, देखो दिस प्लस दिस इतना, और इस तरफ वन लिक्विड है, वाटर है, दिस इज H2O, दिस इज योर मेथलेटेड स्प्लिट, एंड ये वाला आपका यहाँ तक मर्करी, टोटल मर्करी ये पूरा नीचे तक है, बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड दिस मच ओनली, H2 वी हैव टू फाइंड आउट। तो इधर दो लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर सिंगल लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PA विल गेट कैंसल बोथ साइड, है ना। प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। तो एवरी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव यूज्ड हियर this point only, Pascal's law we have used to get these answers. So this is the question number 10. So this you try, you will get the right H2 की level difference की value आ जाएगी मरकरी के। Anything you want to ask? बोलिए, कुछ पॉइंट मिस हुआ है? Disha, all right, are you there? No response coming again from Disha also. Yes, sir. Are you there? Is it okay? Question is clear to you? This Sir, is the answer 0.5 centimeter for H2?